Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second lecture of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, in which we will discuss the definition of bailable and non-bailable offence. So, since the previous lecture, we start a new lecture series which is dealing with the new criminal law, procedural law, that is the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So this is the second lecture. So stay tuned or used to follow this lecture series. It will be very beneficial for you. So let's start the topic. The definition of bailable offence. So the definition of bailable offence is mentioned under section 2 subclause C of BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So the definition deals with, so bailable offence means an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence. So the offence which is shown as bailable in the first schedule of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that offence is supposed to be known as a bailable offence, or any other law for the time being in force. If that law shows that offence as a bailable one, that comes under the category of bailable, and non-bailable offence means any other offence. So the offence which is not a bailable one, that is a non-bailable offence. So that is the definition of bailable offence as per the provision of section 2C of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. If we gone through with the provision of Criminal Procedure Code relating to the bailable offence, the same definition was exist in the Criminal Procedure Code also. So only except the section, the definition is the same. अगर हम देखें तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है. मतलब डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन चेंज है. सेक्शन 2C डील करता है बेलेबल ऑफेंस के डेफिनेशन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का. तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? ऐसे ऑफेंस जिसको शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल डिक्लेयर किया गया है. अगर हम शेड्यूल फर्स्ट को देखेंगे तो ऑफेंस का नाम है, उसके सामने सेक्शन है, ऑफेंस का नाम है, पनिशमेंट है, और आगे बेलेबल और नॉन बेलेबल. अगर उस शेड्यूल में किसी ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है तो वो बेलेबल, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से है, जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस. मतलब बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि द ऑफेंस इन विच द अक्यूज्ड कैन क्लेम अ बेल. सो प्रोबेबल क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस पर यह आ सकता है कि एज पर सेक्शन 2C ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल which is made bailable by any other law for the time being in force. Both A and B are correct, both A and B are incorrect. तो अगर हम देखें तो both A and B are correct one. So जो ऑफेंस शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस में आएगा, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई और लॉ में जो क्रिमिनल लॉ अदर देन इंडियन पिनल कोड है, अगर कोई और क्रिमिनल लॉ है और उस लॉ में अगर ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है तो वो भी बेलेबल ही होगा. तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. और प्रोबेबल क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 डिफाइंस द टर्म बेलेबल ऑफेंस. अगर हम देखें तो ये ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, सेक्शन 2 सब क्लॉज सी. बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था. अब BNSS तो 2023 का है, लेकिन रिलीवेंट क्वेश्चन पूछा गया था. चेंज तो कुछ भी नहीं है डेफिनेशन में, सिर्फ सेक्शन है. सो इन अ बेलेबल ऑफेंस द अक्यूज्ड कैन क्लेम हिज रिलीज ऑन बेल नॉट एज अ राइट सिंस द कोर्ट कैन रिफ्यूज हिज रिलीज फॉर स्पेशल रीजन आफ्टर हियरिंग द कंप्लेंट ऑफ द पब्लिक prosecutor as a matter of right, but it is the judicial discretion of the court to grant or not to grant a bail. तो अगर हम देखें तो अगर ऑफेंस बेलेबल है तो अक्यूज्ड एज ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है. मतलब बेलेबल ऑफेंस में बेल अक्यूज्ड का राइट होता है. तो ये जो ऑप्शन 3 है, एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है अक्यूज्ड, ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट
आंसर, बिकॉज बेलेबल ऑफेंस में एज ऑफ राइट बेल क्लेम किया जा सकता है, ना तो कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का से क्लेम कर सकता है, ना तो कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, ये अक्यूज का राइट है बेलेबल ऑफेंस में। अब यहाँ पर अगर पॉइंट हम रिमेंबर देखें तो 2C सेक्शन कौन सा है, 2C है, जिसको हमको रिमेंबर करना है कि बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2C ऑफ किस में बताई गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। शेड्यूल फर्स्ट में जो ऑफेंस शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल शोन किए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस होगा, और बेल इज द राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल अक्यूज्ड का राइट होगा, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन हो जाता है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।